हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो होने वाला है द सेकेंड वीडियो ऑन द चैप्टर एवोल्यूशन। So students who have watched my previous video on this chapter, they know the topics that has been covered. And for students who are new, आपके लिए बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किया था, they were origin of universe, origin of life, evidences about origin of life and evolutionary evidences. Okay? तो आज का ये वीडियो हम शुरू करने वाले हैं with biological evolution. Now what is biological evolution? अब evolution क्या होता है? Evolution whenever we say it means a change. कहीं ना कहीं कुछ तो change हो रहा है. And when we are saying biological evolution का मतलब क्या? Any change in a living organism or in a population. अब सवाल ये उठता है कि any change होता है या we are looking for a specific change. Yes, we are looking for a specific change, but specific change means specific level पे change. कौन से वाले level पे change हो जिसको हम as biological evolution बोल सकते हैं. The level at which the change has to occur is at the level of genes. क्योंकि जब तक वो changes inherit होके एक generation से अगले generation तक नहीं जाएगा, and these inheritance will continue for many generations to see a change, जिससे कि सारे के सारे changes accumulation होके बड़ा change हो रहा है, we cannot call it evolution. So खाली किसी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो, कुछ एडेप्टेशनल चेंजेस हो, क्या हम उसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलेंगे? नो, हम उसको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे. सो व्हाट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन? Biological evolution can be defined as any genetic change in a population that is inherited for several generations over many years, right? और यही सब changes accumulate होते होते it gives rise to a new species, and formation of a new species is called what? Speciation. Clear है? Now ये changes जो हो रहे हैं, we are talking of the changes at the genetic level. ऊपर से इस पे क्या काम, what factor acts on it? There can be many factors, but one of the most important factor जिसे डार्विनिज्म में हमने पढ़ा है, that is the natural selection on this evolution, on these changes, right? तो आपके NCERT में ये पैराग्राफ है which says कि नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो शायद जब से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे तभी से द नेचर स्टार्टेड एक्टिंग और शोइंग इट्स सिलेक्शन फॉर द बेटर सुटेड वंस. क्लियर है? अब जो ऑर्गेनिजम्स अगर माइक्रोब्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, इसीलिए उनमें चेंजेस, एवोल्यूशनरी चेंजेस या द चेंजेस दैट इज अकरिंग across many generations, वो बहुत जल्दी जल्दी हमें नज़र आ जाता है. क्लियर है? बट फॉर लार्जर ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा है, इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू इवॉल्व, क्योंकि एक लाइफ स्पैन से दूसरे लाइफ स्पैन पे वो इनहेरिट होना, एंड फॉर दिस इनहेरिटेंस टू कंटिन्यू फॉर मेनी जनरेशंस इट टेक्स टाइम, राइट? तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में दो थ्योरीज दिए हुए हैं. लेट्स लुक एट व्हाट द थ्योरीज से. सो द फर्स्ट थ्योरी इज गोइंग टू बी लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इसे पॉपुलरली लेमार्किज्म भी कहा जाता है. एंड द सेकेंड थ्योरी इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Now if you remember students, for those who have seen my previous video, मैंने कहा था कि Darwin's theory is mentioned at 3 different places within the chapter, right? तो उसी वाले theory का हम फिर से यहाँ revisit करेंगे. So let's first begin with what does Lamarck's theory of acquired character says. Okay?
So Lamarck was a French naturalist, okay, and his theory is one of the first attempts to explain biological evolution. So what does he say? He says first point is कि a living organism in its lifetime undergoes some changes to adapt to the environment. Clear? Second, these changes are inherited or are acquired by the next generation, or you can say they are passed on to the next generation. Clear है? And that is why the theory of inheritance of acquired characters. इसके बाद भी एक और पॉइंट है, बट उस पॉइंट पे जाने से पहले ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने अभी कहा, इन दोनों पॉइंट्स को समझाने के लिए व्हाट हैड ही डन? ही हैड टेकन द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ. Now, giraffe, we all know they have very long necks. So according to this theory, giraffe के जो ancestors थे, या the primitive ones, they did not have such a long neck. उनके गर्दन छोटे थे. They had short neck. But slowly and slowly उन्हें हर generation पे अपने neck को stretch करना पड़ता था. Why? Because जो पत्ते वो खाते थे, वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर होता था. नीचे के पत्ते खा लिए, अब ऊपर जाना है तो स्ट्रेच करना है. एंड दैट इज हाउ अक्रॉस मेनी जनरेशंस पहला वाला जिराफ वाज विथ अ शॉर्ट नेक. ओके, ये एक बहुत ही फनी जिराफ है. आफ्टर मेनी जनरेशंस, आफ्टर मेनी जनरेशंस, इफ यू कैन सी, जिराफ का नेक लंबा होता गया. एंड फिर उनके नेक्स्ट वो जिराफ जो पैदा हुए, दे वर ऑल बोर्न विथ लॉन्ग नेक्स इन द सक्सेसिव जनरेशंस. क्लियर है? एंड द थर्ड पॉइंट दैट ही हैड सेड इज प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज. दैट इज द थर्ड पॉइंट. Now, principle of use and disuse of what he is talking about? He is talking about organs. Okay? जिस organ को बहुत use किया जाता है, it strengthens the organ. और जिस organ को use नहीं किया जाता, धीरे धीरे it becomes weak or it weakens and फिर degeneration हो जाता है. क्लियर है ना? यूज एंड स्ट्रेंथनिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू हिम हमें देखने को मिलता है. बट दिस थ्योरी वॉज चैलेंज्ड बाय ए वेजमैन. क्लियर है? इन्होंने इस थ्योरी को चैलेंज करके व्हाट ही हैड डन, ही हैड टेकन रैट्स, और वो रैट्स के हर जनरेशन पे पूंछ काटते गए. एंड ही कंटिन्यूड दिस फॉर 22 जनरेशंस ऑफ रैट्स. 22 जनरेशन तक उन्होंने रैट के पूंछ काट दिया. वाई? बिकॉज ही हैड थॉट कि अकॉर्डिंग टू लमार्क, अगर धीरे धीरे खींचते खींचते एक जिराफ का नेक इतना लंबा हो जाता है, एंड देन ऑल द जनरेशंस, सक्सेसिव जनरेशंस आर बोर्न विथ लॉन्ग नेक्स, तो शायद चूहों का भी अगर हम पूंछ काट दें तो शायद नेक्स्ट जो जनरेशन होगा, आने वाले जनरेशंस, दे विल बी बोर्न ईदर विथ नो टेल या तो वेरी शॉर्ट टेल. बट इवन आफ्टर सो मेनी जनरेशंस ही सॉ कि रैट्स जो पैदा हो रहे थे, दे हैड रेगुलर लेंथ ऑफ टेल. So Lamarckism theory was criticized and it lost its credibility. Clear? All clear? Now let us revisit Darwinism one more time. Okay? तो अब हम देखते हैं Darwin's theory of natural selection. Now, अगर आपको लगता है कि Darwin was the first person to talk of natural selection, then the answer is no. He was actually influenced by the work of
Thomas Malthus. Okay, Thomas Malthus for the first time had talked about what natural selection is. Darwin was influenced by his work and then he gave his theory of natural selection. Now, natural selection होता कैसे है? What is the first point? Very high rate of reproduction, right? High rate of reproduction. Now for students जिन्होंने पहला वाला वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने इन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है. फॉर न्यू स्टूडेंट्स हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखें, बट फॉर यू फिर भी मैं बहुत जल्दी से एक रिकैप कर देती हूँ. ओके ना, सबसे पहले होता क्या है, किसी भी जगह पे देयर इज़ अ हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय ऑल द लिविंग स्पीशीज देयर. डिफरेंशियल हो सकता है, शायद कोई वाला स्पीशीज ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे, कोई कम, लेकिन वो करते हैं पूरा, नो रोक टोक. ओके, वो तो होता है, बट नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट होते हैं. अब यही दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. दे हैव टू फाइट फॉर द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. दैट इज वेयर द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन with variations which help them to tide over या fight back in that environment, they survive. और उस सर्वाइवल को उन्होंने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. नाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब कहा था, he had referred to फिटेस्ट से मतलब क्या था उनका? कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस. अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्यों कहा था? बिकॉज कोई सा भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में बहुत वेरिएशंस के वजह से बहुत अच्छे से सरवाइव कर गया. इट हैज़ द वेरिएशंस, बट अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो इस पे जो कैरेक्टर्स है या ट्रेट्स है वो तो आगे इनहेरिट होगा नहीं, राइट? दैट इज व्हाई ही सेड रिप्रोडक्टिव फिटनेस. अब यहां तक तो हो गया. इसके बाद नेचर कम्स एंड सिलेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या द फिटर इंडिविजुअल ओवर द लेस फिटर वंस. नाउ हमने इतना तक पढ़ा है, बट डार्विन थ्योरी इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग. तो ही टू फर्दर एक्सप्लेन हिज थ्योरी ही हैड इंसिस्टेड ऑन 2 पॉइंट्स. जैसे हम यहां बोल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस. वेरिएशंस हो रहा है, वो जाके द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है. यहां से एक पॉइंट तो आ जा रहा है विच इज नेचुरल सिलेक्शन. दूसरा पॉइंट जो यहां पे व्हाट ही हैड स्ट्रेस्ड वाज ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या? तो ब्रांचिंग डिसेंट से उन्होंने जो कहा था कि एवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज लाइक अ ब्रांच कमिंग आउट फ्रॉम अ कॉमन या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म. क्लियर है? जैसे हम पेड़ पे देखते हैं, दिस इज द ट्रंक और फिर इससे ब्रांचेस निकलते हैं. ही हैड सेड द सिमिलर थिंग कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म कुछ है, ओके, और उसी से इवॉल्व होके डिफरेंट थिंग्स आर कमिंग एज ऑफशूट्स या एज ब्रांचेस. अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो व्हाट ही मेंट बाय ब्रांचिंग डिसेंट इज नथिंग बट एडाप्टिव रेडिएशन, जहां पे एक कॉमन एंसेस्ट्री दिख रहा है और उससे इन डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्विंग. क्लियर है? ऑल डन. सो ब्रांचिंग डिसेंट का एक एग्जाम्पल हो गया. वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट बाय एडाप्टिव रेडिएशन. और दोनों से क्या निकलता है? दे मीन अ कॉमन एंसेस्ट्री. इवन हम जो होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सेड कि हाँ ये ब्रांचिंग डिसेंट के अंदर वो आ सकता है. वी कैन एक्सप्लेन, राइट?
इवन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जहां पे पैरेलली एडाप्टिव रेडिएशंस हो रहा हो। क्लियर है? नाउ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ वी ऑल नो कि नेचर इज सिलेक्टिंग द फिटेस्ट वन। अब नेचर जब सिलेक्ट करे द फिटेस्ट इंडिविजुअल को, वो खाली उस इंडिविजुअल के फिनोटाइप को तो सिलेक्ट नहीं कर रहा, फिनोटाइप के अंदर छुपा हुआ है द जीनोटाइप। क्लियर है? सो नेचुरल सिलेक्शन इज वर्किंग एट द लेवल ऑफ द जीन्स, और एट द लेवल ऑफ द जीन्स को पे जब ये सिलेक्शन काम हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट? Natural selection has a role to play in the changes of allelic frequency. एलिल्स है क्या? एक जीन के ही 2 या 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अब वो अगर उस फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसी वाले जीन को सिलेक्ट कर रहा है। अब उसी वाले जीन को सिलेक्ट कर रहा है तो उसी के एलिल्स को ही सिलेक्ट कर रहा है। अब जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हो गए, उनके जेनेटिक कंपोजिशन और प्रीवियस अनसिलेक्टेड वालों में से अब तो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? नाउ दिस नेचुरल सिलेक्शन, इट शोज इट्स सिलेक्शन इन 3 डिफरेंट वेज। मैं इसको साफ कर दूं, फिर मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूं। ओके? नाउ नेचुरल सिलेक्शन के 3 तरीके ऑफ सिलेक्शन। अगर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि ये कहीं पे लिखा तो हुआ नहीं है, बट इफ यू रेफर टू द डायग्राम इन योर बुक, ओके, ये डायग्राम पे दिया हुआ है, सच कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लें। नाउ कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आ रहा है देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई पर्सनली बिलीव कि जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते बात आगे नहीं बढ़ती। ओके, सो योर कमेंट, योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Now coming back to the topic, stabilizing selection, ये क्या होता है? Let us take a graph. Okay, इस ग्राफ में है number of individuals, okay, with phenotypes, और इसमें है खाली different phenotypes. क्लियर है? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे देयर आर ह्यूमन बींग्स और उनके 3 ही तरह के हाइट है, शॉर्ट, मीडियम एंड टॉल। नाउ शॉर्ट और टॉल ये क्या हो गए? ये 2 एक्सट्रीम्स हो गए। मीडियम हाइट क्या हो गया? ये एक मीडियम कैरेक्टर हो गया। क्लियर है? नाउ इफ नेचर favors the selection of the individuals with the median character, तब ये ग्राफ कैसा बनता है? यहाँ पे शॉर्ट है, मैं इसको पोंछ देती हूँ, यहाँ पे धीरे धीरे मीडियम और यहाँ पे टॉल, और यहाँ पे द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप्स। क्लियर है? अगर अब हम इस बात को ग्राफ में ड्रॉ करें अभी, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये जो पीक ऑफ ग्राफ है इट विल बी हाई, टॉल एंड नैरो। व्हाई? बिकॉज सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं पे हो रहा है, मीडियन ट्रेट वाले इंडिविजुअल्स में। तो ऐसे सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऐसे सिलेक्शन को कहा जाता है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर है? फिर आते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन पे। डायरेक्शनल सिलेक्शन मीन्स व्हाट? फिर इधर पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले ले और इधर पे फिनोटाइप ले ले। इफ नेचर रिजेक्ट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेवर्स वन ऑफ द एक्सट्रीम, ओके, अगर यहाँ पे शॉर्ट है और मीडियम, टॉल, ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रहा है ये फिनोटाइप।
क्लियर है? अगर नेचर शॉर्ट को इग्नोर सिलेक्ट नहीं करता, टॉल को इग्नोर कर सिलेक्ट करता है, सॉरी टॉल को सिलेक्ट करता है, तो हाउ विल द ग्राफ गो? ये ग्राफ का जो पीक है ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन, कौन से वाले डायरेक्शन में द ग्राफ विल गो? इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सट्रीम विच इज बीइंग सिलेक्टेड। क्लियर है? अगर नेचर प्रेफर्स के लिए हम शॉर्ट वाले इंडिविजुअल्स को ही सिलेक्ट करेंगे तो तब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, द पीक ऑफ द ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्ट। क्लियर है? नाउ इस एग्जाम्पल को सब, इसके बहुत सारे से एग्जाम्पल्स हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। एक तरफ व्हाइट मॉथ थे, दूसरे तरफ ब्राउन मॉथ थे। द नेचर सिलेक्टेड द ब्राउन मॉथ। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? द पीक विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्राउन मॉथ। क्लियर है? फिर अगर हम डीडीटी या कोई एक इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं जिससे कि वो मॉस्किटोज बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो रेजिस्टेंट वाले मॉस्किटोज है खाली वही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर से द ग्राफ विल मूव टू दैट साइड एंड द नॉन रेजिस्टेंट वाले, वो भी तो एक एक्सट्रीम है, नॉन रेजिस्टेंट, मीडियम रेजिस्टेंट, पूरी रेजिस्टेंट, तो ग्राफ वहाँ पे भी ऐसा शिफ्ट होगा। सेम विथ एंटीबायोटिक्स ऑन एनी माइक्रोब, जो माइक्रोब्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाते हैं उनके लिए भी द रेजिस्टेंट वालों के तरफ द पीक विल कम। डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो प्लीज नो कंजूसी एंड गिव अ लाइक। ओके। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें क्या होता है? ये नेचर इट सिलेक्ट्स बोथ द एक्सट्रीम्स और मीडियन वाले को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे दो पिक होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका एक हो सकता है ऑयस्टर्स। नाउ ऑयस्टर्स का जो शेल होता है, टू टाइप्स ऑफ कलर्स, एक तरफ वाइट, दूसरी तरफ डार्क या ब्लैक कह सकते हैं। ओके, वाइट वाले को भी सिलेक्ट किया है, डार्क वाले को भी। ये वाइट वाले लाइट पानी में, जहाँ पे पानी शैलो है ऑन सैंड, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, दे सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज ये वहाँ पे कैमोफ्लेज कर लेते हैं। और डार्क वाले शेडेड एरियाज अंडर द रॉक्स डीप इन द वाटर सर्वाइव। सो दैट इज वाई टू कर्व्स आर फॉर्म्ड एंड दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन। कोई एक पीक नहीं है, दो पीक्स हो रहे हैं, दो पीक्स और दो एक्सट्रीम्स। क्लियर है? ऑल क्लियर हाउ नेचुरल सिलेक्शन नाउ वर्क्स? तो डार्विनिज्म को पहले वाले एपिसोड में हमने जितना पढ़ा था, नाउ वी हैव एक्सटेंडेड इट अ बिट मोर। क्लियर है? नाउ ये तो हो गया डार्विनिज्म, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपके चैप्टर में यही दो थ्योरीज दिए हुए हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उसमें एक ही थ्योरी की बात होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में ह्यूगो डी व्राइज का म्यूटेशन थ्योरी दिया हुआ है, बट व्हाई डिड ही प्रपोज? उनके प्रपोजल, उस थ्योरी को देखने से पहले लेट अस लुक एट इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स है कि नहीं। इस थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स हैं। नाउ ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म में क्या क्या आता है? हिज थ्योरी was unable to explain cause of discontinuous variations, degeneration of certain organs, over specialization of certain organs, and presence of vestigial organs. Okay, and that is in 1901 Hugo de Vries. He was not convinced with the theory of natural selection by Darwin. तो अब देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्राइज। ही हैड प्रपोज्ड दिस थ्योरी इन द ईयर 1901। तो इस थ्योरी के अगर बहुत कम वर्ड्स पे डिफाइन करें तो व्हाट डज ही से? न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस। न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
speciation. Clear है? How are they found? By sudden appearance of variations. Variations से what he means? Large heritable random mutation. Okay, according to him किसी जनरेशन में, किसी जनरेशन के इंडिविजुअल में अचानक से रैंडमली कुछ बहुत बड़े बड़े म्यूटेशंस होते हैं, विच ही इज सब्सटीट्यूटिंग फॉर वेरिएशंस. वेरिएशंस से उनका ये मतलब है म्यूटेशंस. और इन्हीं लार्ज म्यूटेशन को व्हाट डज ही कॉल? ही कॉल्स इट saltation. Clear है? Saltation means what? Single step large mutation. Clear है? Now ये mutations होते हैं तभी उस जीनोम में भी चेंज आता है. These changes are passed on from one generation to other, और यही accumulate होते होते over a period of time speciation होता है. यही है ह्यूगो डी व्राइस का म्यूटेशन थ्योरी. बट नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डार्विनिज्म एंड ह्यूगो डी व्राइस का ये वाला थ्योरी. ही सेज कि स्पेशिएशन प्रोसेस सडन चेंजेस से होता है, वेरएज डार्विन ने क्या कहा था? चेंजेस दिस इनटू, मतलब वर्सेस, मैं वर्सेस कर देती हूँ. फॉर डार्विन इट इज स्लो, ग्रेजुअल, continuous, small variations, right? According to him, variations have to be large and large mutations. These are the main differences between Hugo de Vries and Darwinism. So students, with this biological evolution and mechanism of evolution खत्म होता है. इसके बाद आपके सिलेबस में है a very important topic, हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल. अब मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. एंड जिन्होंने इस वीडियो को अब तक देखा है, वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल. आई होप कि मैं जो समझा रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल and stay tuned for the next video, which is going to be very important, Hardy-Weinberg principle. And I'll try my level best कि मैं उस principle को आपके दिमाग में बिठा पाऊँ. Okay, so I'm going to see you very soon with that video. Bye.